So in loan case number 3, we would be given this data. In this data, we have client ID, name of the borrower, principal amount which has been borrowed, the rate percentage per annum of the loan, and then we have period in years कि कितने साल चलने वाला है ये लोन. Now what do we have to do? Let me clear this out. Okay. Clear all. What do we have to do is, we are a finance company. फाइनेंस कंपनी ने इन सब लोगों को लोन दिया है, ये उनकी डिटेल्स हैं. अब कंपनी ने जिस क्वार्टर से इन लोगों को लोन दिया है उसके आने वाले 10 क्वार्टर तक हमें कंपनी का रेवेन्यू निकालना है. अब जो कंपनी का रेवेन्यू है वो क्या है? कंपनी का रेवेन्यू है जो उनको इंटरेस्ट मिलेगा. वो या ओके. सो द टोटल interest that the company is going to earn. So here, so let me just say interest revenue. अब interest revenue में हमें calculation करनी है. Now we know that जो ये loan setup है उसमें हमारे पास 3 formulas हैं. PMT जो formula है वो हमें installment निकाल के देता है. IPMT formula interest निकाल के देता है किसी भी installment पे लगने वाला, और principal on installment निकालने के लिए we use PPMT. So we have to design a formula that we can drag horizontally and vertically. ठीक है, तो दोनों जगह पर ड्रैग करने वाला एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है. So let us start. So here we will use IPMT formula. IPMT formula में we need to put in rate. तो क्योंकि अभी CD001 क्लाइंट की बात हो रही है तो ये आयुष का केस है. तो आयुष के केस में we understand that rate is D2. Now with this rate we will have to divide this rate by 4 because all our loans are being paid quarterly. यहाँ पे periodicity fix है, तो periodicity fix होने की वजह से we have to divide it by 4. Next comes NPER, that is कौन सा period चल रहा है. तो इसमें हम इस 1 2 3 4 की जो हमने रो बनाई हुई है उसमें हम 1 को select करेंगे because that contains our period. Then comes NPER. So NPER is period of the loan multiplied by 4 because periodicity is quarterly. And last comes your PV. We'll put a minus sign over here because we want to work with a positive value, और यहाँ पे हम principal को add कर देंगे. With that, you have calculated the loan amount, sorry, the interest amount that Ayush will pay to the company. ठीक है. Now we want to drag this formula down. So right now we understand that everything that we have put in as reference, D2, E2, C2, they all belong to this table which we have created in the above rows. अब इसको फॉर्मूले को ड्रैग डाउन करेंगे तो ये फॉर्मूला ठीक काम करेगा इफ आई फिक्स B9. अब B9 में मुझे क्या फिक्स करना है? मुझे फिक्स करना है 9 को, because in the 9th row only I have got the period. So I will put a dollar sign right in front of 9 so that I will get a horizontal drag which is correct. तो horizontal drag करने से हमारे ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट हो जाते हैं फॉर ऑल द क्लाइंट. तो अगर CD6 के लिए कर रहे हैं तो ये सही कैलकुलेशन हो रहा है क्योंकि उसका रेट 11% है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, उसका पीरियड अभी 1 है, और फिर देन वी हैव द NPER as period in years multiplied by 4, E7 by 4, and then lastly we have minus C7 which is the principal amount. तो हॉरिजॉन्टल ड्रैग करने के लिए ये ठीक काम कर रहा है.
अब हम इसको सर अगर हम बी के आगे भी डॉलर लगा दे तो? बी के आगे डॉलर लगा देते हैं तो फिर क्या होगा, क्या होगा? तो फिर हम इसको ऐसे ड्रैग नहीं कर पाएंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टली ड्रैग नहीं कर पाएंगे, वर्टिकली कर पाएंगे, हॉरिजॉन्टली नहीं कर पाएंगे। यस सर, हॉरिजॉन्टली नहीं हो रहा। हाँ, हॉरिजॉन्टली करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू कीप द बी फ्री, क्योंकि नाइन्थ रो में हमारा पीरियड है 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है ना, B9 C9 D9। तो अगर हमने इसको ऐसे चेंज नहीं किया तो फिर वी विल फेस द प्रॉब्लम इन ड्रैगिंग देम हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टली ड्रैग करने जाएंगे तो फिर एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि जो अभी रेफरेंस हमारा D2 डला हुआ है वो खिसक कर, अगर हमने हॉरिजॉन्टली ड्रैग किया तो E2 बन जाएगा, E2 F2 बन जाएगा और C2 D2 बन जाएगा। So we will have to protect the columns in the other cases। तो हमको यहाँ पर D2 को $D2 बनाना पड़ेगा, E2 को $E2 बनाना पड़ेगा और C2 को $C2 बनाना होगा। With that you can drag the formula horizontally as well as vertically। ये करने के बाद में just bring the formula down, right? Now everything gets calculated pretty easily। सारे के सारे फॉर्मूला सही काम कर रहे हैं क्योंकि हमने जो रेफरेंसिंग करी है वो ठीक करी है। अब जब मैं इस फॉर्मूले को हॉरिजॉन्टली ड्रैग करता हूं तो माय B9 चेंजेस टू C9, जिसमें पहले 1 लिखा हुआ था अब वो 2 पे आ गया। तो दिस इज गुड क्योंकि हम सेकेंड पीरियड के लिए इस कॉलम में कैलकुलेशन कर रहे हैं। बट माय D2 E2 एंड C2 शुड नॉट चेंज and that is why $D2 works। हॉरिजॉन्टली ड्रैग करने के लिए जरूरी है कि यू कीप योर रेफरेंसिंग करेक्ट। अब आखिरी चीज जो यहाँ पे रह गई है वो है कि हमको लास्ट के 2 सेल्स में यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने गार्बेज क्लीनिंग नहीं लगाई है। गार्बेज क्लीनिंग का मतलब होगा कि यहाँ पर ब्लैंक आएगा। क्यों? क्योंकि हैरल्ड का जो लोन है वो 2 साल का ही है और 2 साल में कितने क्वार्टर होंगे? 8। 8, राइट? तो 8 क्वार्टर तक तो हमारी कैलकुलेशन ठीक चली, फिर उसके बाद में हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई। एक्सेल कंफ्यूज हो गया कि भाई ये 9th क्वार्टर कहाँ से आ गया, लोन तो 8 क्वार्टर में खत्म होना था, 9th क्वार्टर में क्या हो रहा है? दैट इज व्हाई द कंफ्यूजन, दैट इज व्हाई द एरर इज जनरेटिंग। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई गार्बेज क्लीनिंग। गार्बेज क्लीनिंग का क्या तरीका है? सिंपली यू हैव टू पुट अ इफ फॉर्मूला। अब वो इफ फॉर्मूला क्या है? हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमें करंट पीरियड को कैलकुलेट करना है या नहीं करना है। तो व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू टाइप अ इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला में हम चेक करेंगे कि जो करंट पीरियड है इज B9, इफ दिस करंट पीरियड इज लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स दैट वी रिक्वायर। अब टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स किसी भी लोन अमाउंट के लिए या फिर लोन केस के लिए कैसे निकालेंगे? पीरियड इन ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 4। तो जब तक ये टोटल नंबर ऑफ पीरियड से कम है, पीरियड करंट पीरियड की वैल्यू, तब तक हम आईपीएमटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो ब्लैंक लगा देंगे, ठीक है? बट before we apply this formula we need to make sure that our referencing is correct। तो B9 और E2 की रेफरेंसिंग करेक्ट है? I couldn't hear anything। नो सर। नो, राइट? क्योंकि अभी अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग डाउन करता हूं, वर्टिकली करता हूं, तो B9 चेंज होकर क्या बन जाएगा? B10 बन जाएगा फिर, B10। राइट? एंड दैट इज B10 में तो हमारी आयुष के लिए पहले क्वार्टर की इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट हो रही है, तो वो गलत हो जाएगा। तो व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू फिक्स
द 9th रो, क्योंकि हमारी जो 9th रो है उसी में हमारा पीरियड लगा हुआ है। उसी तरीके से E2 में क्या फिक्स करेंगे, E को फिक्स करेंगे या 2 को फिक्स करेंगे? टू E को फिक्स करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली टेबल में देख रहे हो, ऊपर वाली टेबल में हमारे जितने भी पीरियड ऑफ ईयर्स हैं या फिर पीरियड इन ईयर्स वो सिर्फ E कॉलम में है, राइट? तो अगर मैं वर्टिकली इसको ड्रैग करता हूं तो ये E2 से E3 बन जाना चाहिए, बट जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग करता हूं तो ये E2 से F2 नहीं बनना चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू फिक्स अ डॉलर साइन इन फ्रंट ऑफ E। ठीक है, अब इसको अगर हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैलकुलेट करते हैं तो अब हमारे पास एरर नहीं आ रहा है। एरर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा इफ फॉर्मूला हमें बता रहा है कि भाई इसकी वैल्यू फॉल्स है। ये जो लॉजिकल टेस्ट हुआ है इसकी वैल्यू फॉल्स है। क्यों? क्योंकि J9 जिसमें हमारा 9 लिखा हुआ है, इज इट लेस देन इक्वल टू E7 मल्टीप्लाइड बाय 4? E7 में लिखा हुआ है 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 8 आता है। सो ऑफ कोर्स 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 8। दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग द ब्लैंक वैल्यू। आखिरी चीज जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वो टोटल कैलकुलेट करना है। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर से नीचे तक सारी वैल्यूज को ले लेंगे, then just simply drag it and you will get all the quarterly revenue right in front of you। कोई काउंटिंग सर करते ये हैं। जो बॉक्स खुल के आया था वो कैसे आया था? बॉक्स को लेने के लिए तरीका है, ये फॉर्मूला बार कहते हैं इसे। फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला नजर आता है और यहाँ पे fx का एक बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ओके सर, थैंक यू। ओके, so with that I guess we have covered loan case number 3. Let us talk about loan case number 4. अब लोन केस नंबर 4 में क्या करना है? लोन केस नंबर 4 में हमसे ये कहा जा रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है। इंटरेस्ट रेट आज जब लोन शुरू हो रहा है तो अभी 10% है, फिर कुछ टाइम के बाद 12% हो जाएगा, फिर 9% हो जाएगा, फिर 10.5% हो जाएगा, फिर 12% हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होगी वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो लेट मी रिमूव ऑल दिस। करना क्या है? करना ये है कि हमको जब ये शीट बनानी है तो ध्यान क्या रखना है, हमें सिर्फ 3 ही इनपुट चाहिए, अमाउंट ऑफ लोन, लोन ड्यूरेशन और पीरियोडिसिटी। क्वेश्चन में गिवन होंगे, फिर हमें ये टेबल क्रिएट करनी है। अब ध्यान रखना, लोन केस नंबर 4 आता है इफ लोन केस 4 is in the question, then you don't have to apply garbage cleaning। तो गार्बेज क्लीनिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई सब लोगों को? यस सर। तो इफ यू just a second, okay, so are you able to hear me? यस सर। ओके, तो अभी क्या करते हैं, अभी पहले इस शीट को खाली कर देते हैं, राइट? लेट मी जस्ट क्विकली remove all of this, clear content, all right। शुरू से समझते हैं करना क्या है। हमको अमाउंट ऑफ लोन गिवन है, लोन ड्यूरेशन गिवन है, पीरियोडिसिटी गिवन है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो गिवन होगा कि हर साल बदल रहा है।
तो फर्स्ट ईयर में यानी पहले 4 पीरियड में, पहले 4 क्वार्टर में आपका इंटरेस्ट रेट 10%, फिर 12% है, फिर 9% है, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ हाउ टू डू द कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन करने का वही तरीका है. सबसे पहले you have to treat the first row in this opening balance. The opening balance will come from B2 and that is how you get 1 lakh. अब इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है. इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूजुअली हम क्या करते हैं, हम जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको पेरियोडिसिटी वाले नंबर से डिवाइड करके ओपनिंग बैलेंस से मल्टीप्लाई करते हैं. सो वी विल डू दैट. सो वी विल टेक ओपनिंग बैलेंस. हमने यहाँ पर F3 को लिया जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, एंड देन वी मल्टीप्लाई इट विद आवर इंटरेस्ट रेट. अब इंटरेस्ट रेट क्योंकि बदलता रहता है तो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं है. जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जो अप्लाई होगा. तो K3 में हमारा इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है. यू टेक दैट एंड डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि हमारी पीरियोडिसिटी क्वार्टरली है. दैट इज व्हाई यू गेट दिस इंटरेस्ट अमाउंट. तो हमारा 10% के हिसाब से एक क्वार्टर का इंटरेस्ट 2500 रुपए बन गया. ऑल राइट. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट. अब इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इज पीएमटी. पीएमटी फॉर्मूला में वी पुट इन द रेट. अब रेट जो है हमारा वो यहीं से आएगा 10%. देन कम्स योर एनपीईआर. अब एनपीईआर का जो मुद्दा है उसको समझ लेंगे ध्यान से क्योंकि यहाँ पे सारा खेल ही एनपीईआर का है. एवरी टाइम द इंटरेस्ट रेट चेंजेस और there is something changing in the settings of the loan, it becomes a new loan. ये बात थोड़ा ध्यान से समझने वाली है कि every time when your interest rate changes, it becomes a new loan. अब ये तो हो सकता है कि हर क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट बदल जाए, राइट. इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं तो हर क्वार्टर एक नया इंटरेस्ट रेट हो सकता है. So what we will do is that we will calculate the installment thinking कि अब जो बचा हुआ इंटरेस्ट है वो हमें अपने बचे हुए प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट करना है. तो जितना प्रिंसिपल अमाउंट हमारा रह गया है उस पे हमें सारी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है. ठीक है. तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है यहाँ पे, वी हैव टू गेट द यूजुअल कैलकुलेशन. तो हमारी यूजुअल कैलकुलेशन क्या है, लोन ड्यूरेशन जो कि चेंज नहीं होने वाला B3 में, मल्टीप्लाइड बाय पीरियोडिसिटी जो कि अगेन चेंज नहीं होने वाला है. So this gives us the initial part of our calculation. अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट ये है कि हमको 5 into 4 20 आ गया. अभी जब हम पहली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितनी इंस्टॉलमेंट बाकी है. When you are calculating the first installment, how many installments are left? 19. अभी पहली वाली कैलकुलेट कर रहे हो, पे भी नहीं हुई है. 3. Others? Excuse me, sir. Yeah, Sir, in this formula of PMT, why we haven't like divided K3 by 4? we will do it. We will do it. Okay. Answer my question first, na? My question is, when you are calculating the first installment, how many installments are left? 20. 20. Yes. क्योंकि अभी तक कोई इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं हुई है, अभी तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो कैलकुलेशन किस दिन पे होगी, कैलकुलेशन उस दिन पे होगी जहां पे पहला क्वार्टर खत्म होगा. लेट्स सपोज वी स्टार्टेड इन 1st January, first quarter is ending on 31st March. So today when we are calculating the installment कि कितना ड्यू हुआ 31st मार्च को, तो अभी तक कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई. नाउ वी वांट द आंसर
in NPER to be 20 only, ठीक है। बट अगले वाले केस में जब हम सेकेंड रो में आएंगे तब मुझे 19 चाहिए, क्योंकि तब तक एक क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट जा चुकी है। अब मैं दूसरी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो बची हुई इंस्टॉलमेंट कितनी हुई? 19. So how to get 20 NPR in the first row and then 19, 18, 17, 16 in the second row onwards? तो वो करने का क्या तरीका है? You calculate NPR का जो हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं यूजुअली वाला, वो यहाँ पर लगाएंगे and then just do plus, sorry, do minus period and plus 1. All right. Now I am putting it in brackets just to be very sure of what we are doing. K3 divided by 4 हो गया. Thank you for pointing it out, स्नेहा. तो इंटरेस्ट रेट को हम क्वार्टरली क्योंकि पे कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 4 रहेगा. अब एनपीआर में यूजुअली क्या करते थे? एनपीआर में यूजुअली करते थे B3 मल्टीप्लाइड बाय C4, यानी टोटल लोन ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय द पीरियोडिसिटी नंबर. तो B3 इंटू C4 किया, हमारा आंसर आ जाता. अब क्या है, क्योंकि हर बार हम लोन को एक नया लोन कंसिडर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें फिर से पता लगाना होगा कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स बाकी है. तो अब एनपीईआर में वी हैव टू इंश्योर दैट वी गेट द राइट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. अब E3 माइनस E3 प्लस 1 करने का क्या फायदा है? पहले वाले रो के लिए E3 में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो -1 प्लस 1 करूंगा, आंसर क्या आया? 0 आ गया. तो हमारे लिए पहले वाले रो में कैलकुलेशन बनी रही एनपीईआर की B3 मल्टीप्लाइड बाय C4 -1 प्लस 1 बना 20 ओनली. अगले वाले रो में E3 की जगह पर क्या आ जाएगा? E4 आ जाएगा. तब हमारा एनपीआर हो जाएगा B3 इंटू C4 -2 प्लस 1, यानी एक -1 आ गया. 20 -1 यानी 19 आ गया. उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है. नाउ इन पीवी मेक श्योर दैट यू पुट योर ओपनिंग बैलेंस. जो हमने माइनस साइन के बाद में F3 लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि जो बैलेंस बचा रह जाएगा, सारा इंस्टॉलमेंट अभी जो पिछला वाला पे करने के बाद जो बचा रह जाएगा, उस पे हमें कैलकुलेट करना है इंस्टॉलमेंट. तो दैट इज आवर पीएमटी फॉर्मूला. सब लोग ध्यान से देख लो, इसको समझ लो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन. बाकी सारा बहुत आसानी से हो जाएगा. अभी somebody was saying कि can we use IPMT? Harish was saying yes Harish, you can use IPMT, but फिर IPMT कैलकुलेट करने के लिए भी तुम्हें ये सारा का सारा कैलकुलेशन IPMT वाले फॉर्मूले में डालना पड़ेगा. अभी तो आसान है. अभी देखा ये वाला, वो वाला लेंदी पड़ जाएगा थोड़ा. हाँ, राइट, बट यू कैन डू इट, डेफिनेटली यू कैन डू इट. ओके, तो हमारा ये पीएमटी का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, हमारी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट हो गई. नाउ वी कम टू क्लोजिंग बैलेंस. Here in closing balance it is pretty clear. We have to do opening plus interest minus installment. ठीक है. अब अगर लोन रीपेड भी कैलकुलेट करना है तो ये आसान है, या तो इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट कर दो, नहीं तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दो. दोनों केसेस में ये काम करेगा. नाउ सिंस वी हैव द ओपनिंग बैलेंस, सेकेंड रो का जो ओपनिंग बैलेंस है वो पिछली बार का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, तो सेकेंड रो को थोड़ा एक एक करके ही we will drag it down. Now you can drag down the entire thing till 20, and that is how this question of yours will get solved. तो जब तक इंटरेस्ट रेट 10% रहा, हमारी इंस्टॉलमेंट 6414 रही. फिर 12% इंटरेस्ट रेट पे हमारी इंस्टॉलमेंट चेंज होके 4 times 6 बन गई. देन 9% होने पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कम हो गया, फिर अगेन बढ़ गया, फिर एंड के लास्ट ईयर में फिर से 6533 बचा. तो एवरीवन गॉट द पॉइंट.
how to calculate floating interest rate का installment. So